Good morning, dear students. Today we are going to start with a clustering example, 2D example. Yesterday we have seen the 1D example, which is very simple example. But in your examination, always the 2D example is coming. So here we'll start with example. This data is given here, where this data is a combination of two coordinate, that is x and y. So data 1 is 5,7, 2 is 9,8, 3 is 3,5 likewise. So there are total 6 data which is given, and here I have given their distribution, like 5 indicates the height and 7 indicate the weight. It can be a height and weight of any of the object, and we have to divide this 6 data into the clusters. Now in how many cluster we have to divide, that is again depend on either user or the number of data which is given. So here the data is very less, means only 6 objects are given, so we can divide the data only in a 2 cluster. Here I have used a graph to show this data on in a point wise, how this data is shown in your graph. So if I consider this first object, so it is coming at where 3 and at 5. So it is showing this one 3,5. So this is the first data point. This second data point, it is having 8 and 4, that is 4,8. So it is showing the second data point. So likewise every data point is shown on the graph here. So you can understand in a both way. If data is in form of table, how to cluster. If data is in the form of given in a graph, how to make the cluster of that data. So we'll start with example. Okay, so this data is given to you. Now our next consideration is how much cluster we have to form. So here the value of k we are considering is a 2. It means we have to divide the data in a 2 cluster, in 2 parts. So in yesterday we have seen that whenever you want to divide the data in a cluster, the seed point you have to consider a seed point. Seed point means you have to consider a 2 क्लस्टर सेंटर, जो कुछ कोई भी हो सकते हैं. तो हमारे टेबल में हमारे पास जो 6 डेटा सेट दिए हैं, सो फ्रॉम दैट 6 डेटा आप कोई भी 2 डेटा पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है 3,5 एंड 9,8. you can consider 4,8 and 5,7. so you can use starting initial values depend on the user. he can select any 2 point. क्योंकि हमारी k की वैल्यू 2 है, इसके लिए हमने 2 डेटा को सिलेक्ट किया. अगर मेरी k की वैल्यू 3 रहती, सो दैट टाइम आई हैव टू सिलेक्ट द 3 डेटा पॉइंट्स. ओके, सो ये हमने बोल दिया कि हम जो क्लस्टर बनाने वाले हैं, स्टार्टिंग में हमारे क्लस्टर का ये सेंटर रहने वाला है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप समझ में आई है सबको? क्या किया हमने स्टूडेंट्स? नो मैम. ओके ओके, देखो यहाँ पे आपको ये डेटा दिया है. ये डेटा जो है इसमें, अब ये डेटा कैसे है देखो, मैं आपको जस्ट यूज मैम आपने वो पहले पॉइंट प्लॉटिंग का भी बताया था, वो क्या था? बताती हूँ वो भी बताती हूँ. देखो अभी डेटा जो दिया गया है यहाँ पे आपको, सो दिस डेटा इज गिवन. इस डेटा को अगर मैं एक सेट में कंसिडर करना चाहूंगी, तो देखो कल जो हमने एग्जांपल देखा उसमें डेटा क्या था 2, 3, 7, 8. यानी हर डेटा को खाली एक ही डायमेंशन था, दिस 2 इंडिकेटिंग 1 ऑब्जेक्ट. लेकिन हमको अभी जो डेटा दिया है इट इज अ 2D. 2D मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट के 2 कोऑर्डिनेट है 5,7. नाउ इटसेल्फ दिस इज 1 डेटा. ओके, सेकेंड क्या है हमारा 9,8. दिस इटसेल्फ इज आवर सेकेंड डेटा पॉइंट. देन 3,5 ये हमारा थर्ड डेटा हो गया. सो यू कैन कंसिडर ऐसे हमारे पास कितना डेटा दिया इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये सब 6 के 6 डेटा अभी हमारे एक ही क्लस्टर में एक ही साथ दिया हुआ है. अब हमको क्या करना है, इसको 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है. तो जब हमको 2 क्लस्टर में डिवाइड करना होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है, हमेशा याद रखो, whenever you want to divide the data in a cluster,
द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज आपको एक दो सेंटर पॉइंट डिसाइड करने हैं। अगर दो क्लस्टर बनाने हैं, अगर आपको 3 क्लस्टर में डिवाइड करना है तो आपको 3 सेंटर पॉइंट डिसाइड करना है। रैंडमली आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो वो वैल्यू होती है हमेशा आपके डेटा पॉइंट से। तो जैसे अभी हमारे पास 6 डेटा पॉइंट है। अब इसको मैंने सिर्फ ग्राफ में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो, ये मैंने 2D ग्राफ प्लॉट किया है। अब ग्राफ में नीचे का जो है यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस जो है ये आपकी हाइट डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल जो है ये आपका वेट वाला वैल्यू डिसाइड कर रहा है। अब इसको हमने कैसे प्लॉट किया है, एग्जाम्पल हो कि मुझे अगर 5,7 ये वैल्यू मुझे ग्राफ में दिखानी है, तो 5 मतलब हाइट, तो 5 कहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस। ओके, 5,7 अगर मुझे दिखाना है तो 5 जाएगा मेरा एक्स एक्सिस पे, 7 जाएगा मेरा वाई एक्सिस पे। तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एंड हाइट जो है ये दिस आई एम कंसिडरिंग इट एज अ वाई एक्सिस। तो अभी x की वैल्यू क्या है 5, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे कहीं तो क्या आने वाली है 5 की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है 7, तो 6 और 8 के बीच में यहाँ पे कहीं तो क्या आने वाली है 7। तो यहाँ पे मतलब 5 सॉरी सो 5 एंड 7 इन दोनों को इंटरसेक्ट जहां पे कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या डिनोट कर रहा है, आपका फर्स्ट डेटा पॉइंट डिनोट कर रहा है। अगर मैं बोलूं 9,8 अगर आपको प्लॉट करना है, तो 9 कहाँ पे जाएगा आपके एक्स एक्सिस के ऊपर और 8 जाएगा आपके वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप देखो जैसे 8 और 9 ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये जो डेटा पॉइंट है ये क्या हुए है आपका सेकेंड डेटा पॉइंट। सो लाइकवाइज जैसे आपने बहुत सारे बचपन में ग्राफ प्लॉट किया रहेगा, तो खाली ये वैल्यू हमने एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, दैट्स इट, दैट वी हैव डन। ओके, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपको डेटा दिया है इसको हमें दो क्लस्टर में डिवाइड करना है। तो दो क्लस्टर को डिवाइड करने के लिए आपको कोई भी दो डेटा पॉइंट जो है आपके टेबल के उसको सिलेक्ट करो एज ए सेंटर पॉइंट ऑफ दैट क्लस्टर। तो यहाँ पे मैंने ये दो जो डेटा पॉइंट है मतलब 3,5 एंड 9,8 इसको मैंने सेंटर डिसाइड किया। आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम में, एनी 2 पॉइंट यू कैन कंसिडर एज ए सेंटर। समझ में आया अभी ये? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। सबको समझ में आया है? यस सबको मैम। फर्स्ट समझ में आएगा फर्स्ट स्टेप, तो ये आगे का समझ में आएगा आप लोगों को? ओके, मैम फर्स्ट फिर स्टेप से रिपीट यस करो मैम एक बार। क्या बोल रहे हैं, क्लियर सही समझ में आ रहा है? यस मैम फिर से एक बार रिपीट करो। आप लोग अभी ज्वाइन हुए शायद से कुछ लोग, ठीक है, कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेप सिंपल है, आपको जो भी डेटा दिया जाएगा, देखो ऐसा वाला टेबल आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इसमें डेटा छोड़ के यानी सिर्फ हाइट और विड्थ ऐसा दो कॉलम आपको एग्जाम में दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इसको एक वैल्यू में मैंने इसको कंबाइन किया, मतलब 5,7 ये 1 वैल्यू हो गई, 9,8 ये सेकेंड वैल्यू हो गई, 3,5 ये थर्ड वैल्यू हो गई। तो जो भी डेटा दिया है ये 2D डेटा बोलते हैं। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस का डेटा, ये हो गया वाई एक्सिस का डेटा, इसको मैंने कंबाइनली यहाँ पे शो किया है। और आपको एग्जाम में ये बोला जाएगा कि आपको ये जो डेटा है 6 जो डेटा है ये अभी एक ही साथ है, एक ही जगह पे है, इसको आपको डिवाइड करना रहेगा दो क्लस्टर में। तो दो क्लस्टर में डिवाइड जब करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहती है कि आपको उस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। तो आप सेंटर पॉइंट जो है ये आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो कोई भी दो वैल्यू ले लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज जो लिए है, ये लिए फर्स्ट 9,8 3,5। स्टेप 1 में हमने खाली डेटा में देखा कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है। अगर क्लस्टर 2 है तो कोई भी दो डेटा पॉइंट को आप एज ए सेंटर कंसिडर करो। ये खाली स्टेप 1 है हमारी। ओके, स्टेप 2 जो है, अब मैंने इसको ग्राफ में खाली दिखाया है कि जो दो क्लस्टर्स मैंने दो सेंटर पॉइंट जो मैंने डिसाइड किए, सो 3,5 ये फर्स्ट सेंटर पॉइंट मैंने डिसाइड किया, एंड 9,8 जो यहाँ पे रेड में दिख रहा होगा ये मेरा सेकेंड क्लस्टर का सेंटर पॉइंट जो ये मैंने डिसाइड किया। एग्जाम में आपको ग्राफ में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी सारे बुक में ये ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसके लिए मैंने दोनों चीजें आपको दिखाई है। आपको एग्जाम में जनरली टेबल के ही फॉर्म में आता है।
सो थर्ड स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से इसको मिस मत करना। ओके यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमने अभी ये सेंटर पॉइंट तो डिसाइड किया, ये सेंटर पॉइंट डिसाइड किया। अब मुझे चेक करना है कि फर्स्ट डेटा जो है 5,7 ये 9,8 से पास में है या 3,5, ये दो सेंटर जो है इन दोनों में से किसके ज्यादा नियरर है। ओके तो दो इसको नियरर या उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है ये 2D डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है, आप बुक और पेन लेके बैठे होंगे, आई होप सो, नहीं होगा तो बुक और पेन लेके बैठो और वहां पे लिख लो ये फॉर्मूला, कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है इसमें हमने फॉर्मूला लिया है रूट के अंदर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। क्योंकि हर जो डेटा है, डेटा 2D में है, 2D मतलब एक वैल्यू x को कंसिडर कर रही है, एक वैल्यू y को। ओके तो अब ये फॉर्मूले से हमको कैसे वर्क करना है, तो यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाऊंगी। इट्स वेरी इजी स्टेप, बहुत इजी वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने एक टेबल बना लिया है, टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है, जो डेटा दिया था वो डेटा लिख लिया है। सेकेंड और थर्ड कॉलम में मैंने उस डेटा को डिवाइड किया है। मतलब फर्स्ट डेटा जो था 5,7, तो 5 आ गया हाइट, मतलब ये हो गई हमारी x की वैल्यू, 7 आ गया मेरा वेट के इसमें, मतलब y की वैल्यू। सो 5 इज x वैल्यू, 7 इज y की वैल्यू। ओके तो ऐसे हर डेटा को हमने यहाँ पे डिवाइड किया और 3 कॉलम जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो फर्स्ट कॉलम अभी हमको क्या करना है कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट सेंटर पॉइंट से जो हमने डिसाइड किया था 3,5, और सेम डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमको सेकेंड सेंटर पॉइंट से जो हमने डिसाइड किया था 9,8। तो अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 5,7 को मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 3,5 से, तो ये कैलकुलेट करने वाले हम यूक्लिडियन डिस्टेंस ये फॉर्मूला से। ओके तो अभी हम 1 बाय 1 जाएंगे, तो इसको कैसे करना है। सो नेक्स्ट में आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट डेटा सेट जो आपको रेड में दिख रहा होगा, और ये डेटा सेट को मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हूँ C1 से, जो आपको येलो में दिख रहा होगा। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला ये लिखा है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालने वाले। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में वैल्यू जो डाली है यहाँ पे, ओके ये होगी मेरी x1 की वैल्यू, ये हो गई मेरी x2 की वैल्यू। ओके मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये डेटा से। तो इस डेटा में फर्स्ट वैल्यू जो है ये x हो गई, इस डेटा की फर्स्ट ये जो वैल्यू है 3x2 हो गई, 7 जो है ये y1 हो गई, 5 जो है ये y2 हो गई। अब ये वाली वैल्यूज जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मतलब इसमें का फर्स्ट वैल्यू 5 माइनस किया जाएगा 3 में से, 7 जो है ये माइनस किया जाएगा 5 में से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो फॉर्मूला था हमारा ये वाला, इसमें हमने वैल्यू डाल दी 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 7 एंड 5, तो मैंने डाल दिया 7 माइनस 5 का स्क्वायर। और जैसे आप इसको एक्चुअल इवेल्युएट करोगे, सो व्हेन यू इवेल्युएट दिस, सो 5 माइनस 3 वैल्यू आ गई 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 5 की वैल्यू आ गई 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, दोनों का एडिशन किया वैल्यू आ गई 8। तो इस डेटा सेट को 5,7 ये क्लस्टर 1 से कितना दूर है, √8। आप √8 की वैल्यू भी एक्चुअली इवेल्युएट कर सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे टेबल में पुट कर दी। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, अगेन आई हैव टू फाइंड आउट 5,7 ये क्लस्टर 2 से कितना दूर है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो सेम फॉर्मूले में मैंने अभी क्या किया, 5,7 5 बन गया x1, 9 बन गया मेरा x2, इसमें का 7 बन गया मेरा y1, ये वैल्यू का 8 बन गया मेरा y2। अब ये वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में डाली, फॉर्मूले में मैंने कैसे पुट किया, 5,9 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8 स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैंने इवेल्यूएट किया, इवेल्यूएट करने के बाद वैल्यू आ गया √17, ये वैल्यू मैंने टेबल में पुट कर दी। ओके अब मैं कंपेयर करूंगी √8 और √17, इसमें से लेस वैल्यू कौन सा है, विच वन इज अ स्मॉलर वैल्यू, √8 एंड √17 इसमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सा है,
रूट 8। ऑब्वियसली रूट 8 ये छोटा है, राइट। तो इसका मतलब ये डेटा किसके पास में है, C1 के पास में है। क्योंकि दोनों में से क्या करने का, देखो दोनों की वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद चेक करने का कि दोनों में से कौन सा डेटा सबसे छोटा है। C1 का डेटा छोटा है कैलकुलेट करने के बाद या C2 का छोटा है। जिसका भी डेटा छोटा है इसका मतलब ये जो डेटा है उस क्लस्टर से बहुत पास में है। तो हमने डिसीजन, ये लास्ट कॉलम दिख रहा होगा डिसीजन, तो डिसीजन में हमने बोल दिया कि ये जो डेटा है ये किसके पास है, C1 के पास है। तो ये डेटा जाएगा क्लस्टर 1 के पास में जाएगा, बिकॉज रूट 8 इज लेस देन रूट 17। सो ऑब्वियसली दिस डेटा विल गो टू द क्लस्टर C1। यहाँ तक स्टेप समझ में आई है, एक बार वापस रिपीट करनी है ये स्टेप? नो मैम। सबको समझ में आया ये? नो मैम। यस मैम। ओके ओके। तो सेम चीज अभी आपको क्या करना है, हर डेटा के लिए रिपीट करना है। मतलब सेकेंड डेटा के टाइम आप क्या करोगे, व्हेन यू गो विथ अ सेकेंड डेटा, तो सेकेंड डेटा में 9,8 विल बी द माय डेटा एंड आई विल यूज दैट फॉर्मूला, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगी। 9 को 3 में से माइनस करूंगी, 8 को 5 में से माइनस करूंगी, स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी। यहाँ पे वैल्यू आ गई रूट 45। सेम वैल्यू को मैंने C2 से, अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, 9 एंड 8, यहाँ पे भी 9 एंड 8 है, तो दोनों को मैं माइनस करूंगी तो वैल्यू 0 आने वाली है, तो 0 आ गया। तो रूट 45 एंड 0, इसमें से लेस वैल्यू क्या है, 0 है। इसके लिए ये डेटा पॉइंट कहाँ पे चला गया, C2 क्लस्टर में चला गया। ऐसे ही मैंने थर्ड डेटा को किया, फोर्थ डेटा को किया, फिफ्थ डेटा को किया, सिक्स्थ डेटा को किया। ऐसे हर एक की वैल्यू मैंने फॉर्मूले में डाल के इवैल्यूएट की, दोनों वैल्यू को कंपेयर किया। जो वैल्यू लेस होगी वहां पे, मतलब C1 की वैल्यू लेस होगी तो C1 लिखेंगे, C2 की वैल्यू अगर लेस होगी तो C2 लिखेंगे, C2 लिखा जाएगा। ओके, मेरा लास्ट इसमें शायद से गलत हो गया है, शायद से यहाँ पे C1 आना चाहिए था। ओके तो यहाँ पे अभी हमने इसके बाद लास्ट वाला वैल्यू C1 आना चाहिए था, तो ये हो गया। अब मुझे पता चल गया, आप ये समझ लो कि C2 छोटा था, ऐसे हम समझते हैं। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि C1 में 3 वैल्यू आ गई है, C2 में 3 वैल्यू आ गई। तो जो C1 में है, C1 को मैंने रेड में दिखा दिया है, जो क्लस्टर 1 में मैंने डाले है। C2 जो है ये मैंने क्लस्टर 2 में डाल दिए है। तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2, इसको मैंने ग्राफ में कैसे दिखाया, ये 3 जो वैल्यू है इसको मैंने रेड में मार्क कर दिया और नेक्स्ट 3 वैल्यू जो है उसको मैंने पर्पल में मार्क कर दिया। तो ये क्लस्टर 1 बन गया, ये मेरा क्लस्टर 2 बन गया। ये स्टेप 1 हुई है खाली। स्टेप 2 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप 2 इज, अब हमको क्या करना है, क्लस्टर 1 जो है ये मैंने एक जगह पे लिख दिया है। जैसे देखो C1 में क्या डेटा आया है, 5,7, 3,5, 4,8। तो ये मैंने C1 के आगे लिख दिया जो क्लस्टर 1 की वैल्यू है। क्लस्टर 2 जो आपको पर्पल में दिख रहा होगा, ये क्लस्टर 2 की वैल्यू है, वो मैंने C2 के आगे लिख दिया, क्लस्टर 2 के आगे 9,8, 10,12 एंड 14,12। तो ये 2 क्लस्टर बन गए। सेकेंड स्टेप में अभी हमको वापस इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। वी आर गोइंग टू इटरेट दिस। ये कब तक इटरेट करने वाले हैं, जब तक क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको अभी हम इटरेट, मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट के लिए अगर हमारा 1D का डेटा है तो हमने एवरेज निकाला था कल के एग्जाम्पल में। अभी हमारे पास 2D का डेटा है, तो इसको कैसे निकालना है, आप अगर फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले मैं C1 का क्लस्टर का सेंटर निकाल रही हूँ। सो क्लस्टर का सेंटर निकालने के लिए x की जितनी भी वैल्यूज है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे x की वैल्यू कौन सी है C1 में, 5, 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है 5 + 3, 4। और कितने वैल्यूज है इसमें, टोटल 3 वैल्यूज है, क्लस्टर 1 में 3 वैल्यू, इसको डिवाइड किया 3 से, तो हमको x का सेंटर पॉइंट मिल गया 4। ऐसे अब यहाँ पे हमको मिल रही होगी y की वैल्यू क्या है, 7, 5 एंड 8। तो हमने डिवाइड किया 7 + 5, 8 और टोटल वैल्यूज कितने हमारे 3, तो डिवाइड किया तो हमको वैल्यू मिल गई 7। तो हमको क्लस्टर 1 का क्लस्टर C1 का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या मिला है, 4, 7, बिकॉज 4 इज इंडिकेटिंग x एंड 7 इज इंडिकेटिंग y। तो C1 आ गया मेरा 4, 7। ये नया सेंटर पॉइंट बन गया हमारा।
ऐसे अभी मुझे क्या करना है, जो सेकेंड क्लस्टर है C2, इसका मुझे सेंटर पॉइंट निकालना है. सो सेम आई हैव डन हियर फॉर C2. सो C2 में x की वैल्यू है 9, 10 एंड 14. इसको हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, वैल्यू आ गया 11. ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 3, ये कर दिया तो वैल्यू आ गई 11. सो क्लस्टर 2 जो है इसका सेंटर पॉइंट मिल गया हमको 11,11. तो ये हमारे न्यू क्लस्टर के न्यू सेंटर पॉइंट बन गए 4,7 एंड 11,12. अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर वी आर फाइंडिंग अ न्यू क्लस्टर सेंटर. अब आप देखोगे सेम डेटा, सेम टेबल मैंने यूज किया है, लेकिन इस टेबल में पहले जो वैल्यू थी हमारी 5,7, 9,8, उसके बजाय जो नया सेंटर की वैल्यू हमारे पास आई है 4,7 एंड 11,11, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली. सो अगेन यू हैव टू find out the distance of this data value from C1 and this data value from C2 by putting this value on the same formula. तो सेम हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू कंसिडर की 4,7 और 5,7, इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये वाले फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट की है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मतलब x 5 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 4 में से, 7 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी इस 7 में से. ओके, तो ये वाला वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट किया, हमको आंसर आया, हमने वो आंसर यहाँ पे पुट किया. अभी √1 का को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे. ऐसे हम अभी सेम 5,7 को इसमें से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 11,11 में से, मतलब अब हम C2 का जो सेंटर पॉइंट है उसमें से ये वैल्यू को डिवाइड करेंगे. तो 5 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 11 स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई √52. अब मैं 1 और √52 को कंपेयर करूंगी, ऑब्वियसली 1 वैल्यू इज लेस देन √52. इसके लिए ये डेटा वापस कहाँ चला गया, क्लस्टर 1 के अंदर. सेम आई हैव डन विथ सेकेंड डेटा, then third data, fourth data, fifth data, sixth data. वापस हमने क्या किया, C1 को एक कलर में डाल दिया, C2 को एक कलर में डाल दिया, ताकि हमको पता चले क्लस्टर 1 में कौन सा डेटा जा रहा है, क्लस्टर 2 में कौन सा डेटा जा रहा है. ओके, वापस मैंने उस टेबल को ग्राफ में डिवाइड किया. यू कैन सी जो पहले की वैल्यू थी और अब की वैल्यू, सो सेम इस क्लस्टर में वही डेटा आ रहा है, इस क्लस्टर में भी सेम डेटा आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ हमारा. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना, स्टॉप करना है, क्योंकि प्रीवियस स्टेप और ये स्टेप के क्लस्टर वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है. सो दिस इज, देखो अब यहाँ पे मैंने वापस किया, C1 के वैल्यूज लिख दिए, C2 के वैल्यूज लिख दिए, प्रीवियस स्टेप और नेक्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं है क्लस्टर C1 और क्लस्टर C2 की वैल्यू में. सो एज देयर इज नो चेंज इन प्रीवियस स्टेप एंड दिस स्टेप, सो बोथ क्लस्टर्स आर सेम. सो यू हैव टू एंड द एल्गोरिथम. लेकिन अगर स्टेप 2 के बाद यहाँ पे कुछ चेंज होता था, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? Again you have to find out the center of this C1 and C2. Again you have to find out the distance from table. Again make a new cluster. ये कब तक करते जाओगे, जब तक आपको ये प्रीवियस स्टेप और नेक्स्ट स्टेप के क्लस्टर की वैल्यूज सेम नहीं मिलती है. ओके, तब तक ये हमारा चलने वाला है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल एवरीवन. Yes, ma'am. इसको हम एक शॉर्ट में 5 मिनट्स में वापस हम रिपीट करेंगे. कोई मुझे स्टेप बताएगा क्या कि क्या स्टेप से हम लोगों ने जो देखे, क्या स्टेप्स आपको समझ में आए? जब आपको डेटा दिया जाएगा एग्जाम में, व्हाट विल बी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फास्टली कोई बताएगा क्या इसको? So you can understand there are 4 steps for K-means method. We are seeing the K-means method. सबसे first step क्या है? Choose the value of K. क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेटा को कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है. ओके, कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है, नहीं दिया है तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K.
तो k मतलब क्लस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये चूज करो। एंड द इनिशियल गेसेस फॉर सेंट्रॉइड, अगर आपकी 2k की वैल्यू है तो 2 सेंटर पॉइंट जो है आपके डेटा के उसको आपको क्या करना है, इनिशियली चूज करना है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है हमारी, कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट टू ईच क्लस्टर, यानी अगर हमने 2 क्लस्टर सेंटर डिसाइड किए तो हर डेटा का हम डिस्टेंस निकालेंगे क्लस्टर 1 के सेंटर से, क्लस्टर 2 के सेंटर से। 3 सेंटर होंगे तो हर डेटा को हम कंपेयर करेंगे C1 से, C2 से, C3 से। तो इसके लिए जितने क्लस्टर बढ़ते जाएंगे उतने कैलकुलेशन आपके बढ़ते जाते हैं। तो हर एक के साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया एंड असाइन ईच पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंटर। तो क्लोजेस्ट सेंटर हमने कैसे फाइंड आउट किया, सो दोनों का डिस्टेंस की जो वैल्यू इसमें से जो छोटी वैल्यू रहेगी तो हमने डिसाइड किया कि ये डेटा उस सेंटर से क्लोज में है, तो हमने उस डेटा को उसको असाइन किया। ये पूरा हर डेटा के लिए कंपेयर कर दिया। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या आएगी, compute the centroid of each newly formed or defined cluster from step 2। स्टेप 2 में हर डेटा इधर हमने C1 में डाला है या C2 में डाला है। तो अभी जो नया C1 का डेटा बना है और जो नया C2 का डेटा बना है उसका हमने सेंटर पॉइंट फाइंड आउट किया विद अ फॉर्मूला। ओके, वापस हम क्या करेंगे, स्टेप 2 को रिपीट करेंगे, 3 को रिपीट करेंगे। ये कब तक रिपीट करते जाएंगे, until the algorithm converges, मतलब when there is no changes occurred either in step 2 और step 3। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्गोरिथम हो गया। तो अभी हम एग्जाम्पल को एक बार वापस देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप समझ लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक छोटा एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में पूछा गया है वो मैं डालूंगी, आपको ये बुक पे सॉल्व करना है। ओके, और जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में 5 मिनट्स हम डालेंगे वो डिस्कशन के लिए। सो क्लस्टर एग्जाम्पल में देखो आपको ये डेटा दिया गया है। ओके, आपको डेटा दिया जाएगा, खाली ये जो 2 कॉलम दिख रहा है ना, हाइट और विड्थ, ऐसे इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा लाइकवाइज। ग्राफ में आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, डिपेंड ऑन यू इन योर एग्जामिनेशन। दे नेवर डिमांडेड, अगर उन्होंने डिमांड किया कि आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है तो ही आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। सो स्टेप 1 हमने क्या किया, टेबल बना लिया और हमने डिसाइड किया कि हमको कितने क्लस्टर चाहिए। तो हमने के की वैल्यू ली 2, तो 2 वैल्यू ली, इसके लिए हमारे 2 सेंटर पॉइंट हमको लेने हैं। तो हमने टेबल में से ही 2 वैल्यू ले लिया, 3,5, 9,8। ये हमारे जो हमको नए क्लस्टर बनाने हैं उसके हमने ये सेंटर पॉइंट पहले ही डिसाइड कर लिए। तो ये मैंने टेबल में यहाँ पे डाल दिया कि ये हमारे सेंटर पॉइंट बनने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमने एक टेबल बनाना है, उसके पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाले दैट इज अ यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है रूट के अंदर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, इसको हमने रूट में डाल दिया है। अब ये टेबल है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में डेटा डाल दिया, उस डेटा को हमने x और y के वैल्यू को डिवाइड मतलब अलग अलग लिख दिया है सेकेंड और थर्ड कॉलम में। अभी हम हर डेटा को C1 के साथ का डिस्टेंस और C2 के साथ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने लिया है फर्स्ट डेटा, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे C1 के साथ। तो हमने इस डेटा को इस फॉर्मूले में डाल दिया है। ये फॉर्मूले में डालने के बाद इसको इवैल्यूएट किया, ये वैल्यू को हमने टेबल में लिख दिया। सेम डेटा को अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे C2 के साथ। सो डेटा एंड C2 की वैल्यूज को मैंने फॉर्मूलाज में यहाँ पे डाल दिया है, उसको इवैल्यूएट किया, ये वैल्यू लिख दिया। दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, वैल्यू जिसकी ज्यादा क्लोज रहेगी वहां पे हम डाल देंगे। C1 की छोटी तो C1 डाल दो डिसीजन में, C2 की छोटी तो C2 को डाल दो डिसीजन में। सो हैव जस्ट पुटेड दैट वैल्यू, लाइकवाइज वी हैव डन दिस। ओके, यहाँ पे मेरे से खाली लास्ट वाले वैल्यू में अपोजिट हो गया है। आफ्टर दैट ये वैल्यू को मैंने कलर कोडिंग दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि रेड कलर का जो डेटा है वो C1 को बिलोंग कर रहा है, पर्पल कलर का जो डेटा है वो C2 को बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे लिख दिया C1 में कौन सा डेटा आ रहा है, C2 में कौन सा डेटा आ रहा है। तो C1 का जो डेटा है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, वैसे ही C2 का जो डेटा है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सो C1 का जो सेंटर है वो कैसे निकालेंगे हम, उसके जो जितने भी x के वैल्यूज है वो लिख दिए डिवाइड बाय 3,
ऐसे C1 के जो y के वैल्यूज है 5, 7, 8 वो हमने लिख दिए डिवाइड बाय 3। 4,7 ये वैल्यू आ गया, हमारा नया सेंटर आ गया है। लाइकवाइज सेकेंड क्लस्टर जो है उसके x1 और x2 के वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए और हमने क्लस्टर 2 का सेंटर निकाल दिया है। सेम अगेन वी हैव टू प्लॉट अ टेबल और यहाँ पे C1 में C1 का जो सेंटर आया था वो डेटा पॉइंट लिखा, C2 में जो सेंटर आया था उसका डेटा पॉइंट लिखा। अगेन हर डेटा को हर नए फॉर्म्ड क्लस्टर के सेंटर पॉइंट से माइनस किया हम लोगों ने और चेक किया ये किसके पास आ रहा है। तो जिसका डिस्टेंस कम है, अगेन वी हैव डन द सेम थिंग फॉर ईच एंड एवरी डेटा और हमने टेबल में वापस डाल दिया कलर कोडिंग के साथ। हमने चेक किया फर्स्ट स्टेप में जो डेटा था और सेकेंड स्टेप के बाद जो डेटा आया, दोनों के सेंटर क्लस्टर के वैल्यूज में कोई चेंज नहीं। इसके लिए हमने इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं लेके गए। अगर एक भी वैल्यू आपकी चेंज होती थी, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू सेंटर एंड अगेन यू हैव टू यूज अ टेबल एंड डू इट कंटिन्यूअसली। ओके, अब हम देखते हैं कि एग्जाम में आपको कौन सा जो डेटा था वो या कौन सा एग्जाम्पल था जो आया था। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू माई ब्लॉग। सो ब्लॉक के अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चन में मैं भी जाती हूँ। ओके, सो ये आपको दिख रहा है 44 नंबर की जो रो है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ मैं। Are you able to see this example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, देखो yes, अभी ma'am. आपको कितने वैल्यूज आए एग्जाम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमने 6 लिए थे, यहाँ पे आपको एग्जाम में कितने आए? 12। और क्वेश्चन क्या आया है, ये इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमारा, use the data and group them using K-मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, शो कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड। मतलब पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, स्टेप 1 करने को बोला है और स्टेप 1 के बाद जो नया सेंटर पॉइंट आएगा वो आपको दिखाने को बोला है। ओके, तो अगर ये कुछ नहीं दिया तो आपको एटलीस्ट 2 स्टेप, कभी भी याद रखो, एटलीस्ट 2 इटरेशन तक आपको क्या करना है, या एटलीस्ट 1 इटरेशन और नया सेंटर पॉइंट आने तक आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं सबको बोलूंगी अगर आपका बुक और पेन है तो 2 मिनट्स है, आप ये जो एग्जाम्पल है ये बुक में लिख लो। ओके, और आपको आज का दिन, कल का दिन हमारा डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर मंडे को, यू हैव 2 to 3 days सॉल्व दिस एग्जाम्पल। और कहीं पे भी अगर आप स्टक होते हो, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट जब लेक्चर रहेगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट 10 मिनट में, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल ऑन योर बुक, ये वाले वैल्यूज लिख लो, या फिर ये आपके साथ शेयर्ड भी है, आप मेरे ब्लॉग पे जाओगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन में जाओगे तो ये आपके साथ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का पॉइंट खत्म हुआ है। इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में अभी स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो खत्म नहीं होगा 2 मिनट्स में। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क।